अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल 4-1 देखते हैं जिसमें मुख्तलिफ कंडीशन आपको दिखाई गई हैं और हमने मोमेंट्स कैलकुलेट करनी है हर फिगर के लिए. सो फॉर ईच केस we need to determine the moment of this force about point O. So starting with first of all figure A जो कि आपको लेफ्ट में टॉप पे दिखाई गई है. So starting with this force which is having a magnitude of 100 Newton and we need to calculate the moment of this force about point O. So what is the perpendicular distance here? Sir, 2 meters. 2 meter. So the magnitude of moment is going to be 100 times 2. So 100 into 2, which is 200 Newton meter, is going to be the magnitude. What about the tendency of rotation? Clockwise or counterclockwise? Sir, clockwise. Clockwise. So we are going to include it with a negative sign as well. So overall, this force is going to create a moment of minus 200 Newton meter about point O. Is it clear to all of you? Yes, sir. Okay, moving to the second figure, which is figure V. Now a force of 50 Newton is being applied and we need to calculate the moment of this force about point O. What is the perpendicular distance in this case between the line of action of this force and the moment axis? Is it 0 or 0.7? 0.75. So the magnitude of this moment is going to be 50 times perpendicular distance, which is 0.75. What about the direction? What is this tendency, clockwise or counterclockwise? Clockwise. It is again clockwise. So we are going to include it with a negative sign. So the overall moment caused by this force is going to be minus 50 into 0.75 Newton meter. Clear है या कोई doubt है किसी को? Okay, so moving on to the third figure, which is figure C. आपके पास एक force है 40 pounds की, which is acting in this direction. So for this force, what is the perpendicular distance now? Sir, 40 sin 30 होगा. No, I'm asking about the perpendicular distance between the line of action of this force and point O. बेसिकली वो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 cos 30 गिवन है. So 4 plus 2 cos 30 is going to be the perpendicular distance, isn't it? Yes. Yes, sir. So the moment would have a magnitude of 40 times 4 plus 2 cos of 30. जहां तक ताल्लुक इसके डायरेक्शन का है, so what is this tendency of rotation? Is it clockwise or counterclockwise? Clockwise. Clockwise, so we are going to add a negative sign here as well. So overall the moment would be minus 40 into 4 plus 2 cos 30. Negative sign हमने क्यों शामिल किया? Because the tendency of rotation is in a clockwise direction. और जो convention हम इस्तेमाल करते हैं वो counterclockwise moments are taken as positive, whereas clockwise moments are taken as negative. Clear है? Yes. Okay, so moving on to the fourth figure, in which a force of 60 pounds is being applied at the end of this rod. What is the perpendicular distance now? It is basically this distance, isn't it? So ये कितना है? Sir, 1 sin 45. So it is basically 1 sin 45. So the moment is going to be 60 times 1 sin 45. ये उसका magnitude आ गया है. जहां तक ताल्लुक इसके direction का है. So what is this tendency of rotation? Clockwise or counterclockwise? Counterclockwise. So आप इसको positive moment के तौर पे जो है वो represent करते हैं. Coming to the final figure, in which a force of 7 kilonewton is being applied at the end of this rod. So what is the perpendicular distance now? Sir, 3. कैसे आपने जज किया? Sir, 4 minus 1. जी, ओवरऑल इसकी लेंथ जो है वो आपके पास 4 है. ओवरऑल लेंथ आपके पास 4 है और जो ऊपर छोटा पोर्शन है वो आपके पास 1 दिया हुआ है. सो आपने जो है वो 4 में से 3 माइनस कर दिया तो आपको जो है वो 4 में से 1 माइनस कर दिया तो आपको जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिला वो आपको ये मिल रहा है विच इज 3 मीटर. सो ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया. सो ओवरऑल द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मोमेंट इज गोइंग टू बी 7 into 3. डायरेक्शन क्या होगा इस मोमेंट का? क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज? Counterclockwise. काउंटर क्लॉकवाइज. तो आपने इसको
पॉजिटिव साइन के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप कि इन पांचों फिगर्स में मोमेंट किस तरह कैलकुलेट की गई है, साइंस किस तरह डाले गए हैं, वो तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है। किसी को कोई डाउट हो किसी फिगर के हवाले से तो काइंडली अभी सर ये जो पूछें। 4 वाली सर फिगर है सर इसमें सर ओ मोमेंट नहीं होंगे सर, वो सर जो पिवट सर ओ नहीं होगा सर फोर्थ फिगर में? जो 60 पाउंड वाली फोर्स है, यस सर। देखिए इसमें पिवट पॉइंट तो ओ है, लेकिन आपकी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, पिवट पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये कितना डिस्टेंस बन रहा है, ये स्लांटेड लेंथ 1 फुट है, इसका ये वाला कंपोनेंट आप लेंगे विच इज 1 sin 45। ठीक है, सही समझ आ गया। चलें, एनी अदर क्वेश्चन रेलेवेंट टू एनी वन ऑफ दीज फिगर्स आप अभी पूछ सकते हैं, अगर नहीं है क्वेश्चन तो वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। चलिए, moving on to example 4-2, you need to determine the resultant moment of these four forces acting on the rod about point O. So आपके पास ये जो rod है इसके ऊपर चार forces act कर रही हैं having magnitudes of 50, 60, 20 and 40 Newton. You need to calculate the resultant moment of all these four forces. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम रिजल्टेंट मोमेंट की बात करते हैं तो जिस तरह से पहले बात हुई है, जब आप समय एक्सिस को यानी फोर्सेस को सम कर रहे होते तो आप एक, अगर आपको याद हो, छोटा सा एरो डालते थे और आप फिर समेशन fx लिखते थे, ऐसे ही है, याद है ये चीज? जी सर। जब आप मोमेंट्स को करते हैं तो बिल्कुल उसी तरह आप अपनी कन्वेंशन को डिफाइन करते हैं। वो छोटा साइन डालने का मतलब क्या था कि यू आर टेकिंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस टुवर्ड्स द राइट। बिल्कुल इसी तरह जब आप मोमेंट्स को डिफाइन कर रहे हैं तो आप जो है वो समेशन MO, अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि बेसिकली यू आर टेकिंग काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट्स एज पॉजिटिव, सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मोमेंट्स ड्यू टू ईच एंड एवरी फोर्सेस समेशन MO स्टार्टिंग विद दिस 50 न्यूटन फोर्स। दिस फोर्स हैव अ मोमेंट आर्म ऑफ 2 meters। सो आपके पास जो मोमेंट का मैग्नीट्यूड आएगा इस पहली फोर्स का, दैट इज गोइंग टू बी 50 times 2, ऐसा ही है? जी सर बिल्कुल। Okay, what about its direction? Is it clockwise or counterclockwise? क्लॉकवाइज सर, तो नेगेटिव हो It is जाएगा। clockwise, so I'm going to include a negative sign here. Okay, coming to the second force, which is this 60 Newton force. Would it create any moment? नो सर। Why? This along moment arm. Because the line of action of this force passes through point O, जिसके about आप moment ले रहे हैं। In other words, आपके पास मोमेंट आर्म इस फोर्स का नहीं है, जीरो मोमेंट आर्म है, सो इट वुड बी क्रिएटिंग जीरो मोमेंट। जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ब्राउन कलर से जीरो लिख दिया, विच इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द मोमेंट ऑफ दिस 60 न्यूटन फोर्स। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. Okay, now coming to the third force, which is a force of 40 Newton. For this 40 Newton force, what is the moment arm? So 4 plus 3 cos 30. बेसिकली आपके पास 40 न्यूटन फोर्स का ये मोमेंट आर्म बन रहा है, विच इज 2 + 2 + 3 cos 30. 3 cos 30. So 40 में आपने 4 + 3 cos 30 कर दिया। As far as the direction of this moment is concerned, ये कौन सा डायरेक्शन बन रहा है, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. इट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज बन रहा है। तो आप इसको भी नेगेटिव साइन के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर देंगे। नाउ कमिंग टू द फाइनल फोर्स व्हिच इज दिस 20 न्यूटन फोर्स। सो 20 न्यूटन फोर्स की अगर हम बात करें तो मोमेंट आर्म इसका क्या बन रहा है? 3 sin 30. 3 sin 30। तो आपके पास 20 × 3 sin of 30 इसका जो है वो मोमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। जहां तक ताल्लुक डायरेक्शन का है, तो व्हाट इज दिस डायरेक्शन, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? काउंटर क्लॉकवाइज। So counterclockwise. So the resultant moment is going to be the algebraic sum of all these four moments. So आपने इनको इनके साइंस के साथ मेंशन कर दिया। Once you take the algebraic sum of these four moments, you are going to get the resultant moment, which comes out to be -334 Newton meter. What does this negative sign represent? नेट मोमेंट क्लॉकवाइज है। This negative sign represents के resultant moment is going to be in a clockwise direction. तो आपने उसको represent करने के लिए ये कर्ल जो है वो शो कर दिया, which represents के moment आपके पास resultant जो है वो clockwise direction में आ रहा है। Is this example clear to all of you? किसी का कोई डाउट, कोई क्यूरी हो, काइंडली अभी पूछ लें। Yes, sir. No question now? कोई क्यूरी नहीं है, सबको समझ आ गया? सर ये जीरो जीरो क्यों लिखा है सर? देखिए जीरो इसलिए लिखा है, जीरो represents the moment due to this
ब्राउन कलर फोर्स जो कि 60 न्यूटन वाली है, ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इज पासिंग थ्रू द मोमेंट एक्सिस, जो ओ की एक्सिस है उसमें से पास हो रही है। तो वंस द फोर्स इज पासिंग थ्रू दैट पॉइंट जिसके अबाउट आप मोमेंट ले रहे हैं, तो चूंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होता है तो आपके पास मोमेंट भी इस फोर्स की वजह से जीरो आएगा, इसलिए मैंने यहाँ इसको जीरो मेंशन किया। अदरवाइज मैं इसको चाहता तो बेसिकली 60 टाइम्स जीरो के तौर पे मेंशन कर देता, वो ज्यादा बेहतर होता। ठीक है, यस सर मेरा क्वेश्चन है सर। जी पूछें। सर ये जो हमने थर्ड मोमेंट लिखी है, सर इसमें हमने क्यों नहीं लिखा 3 cos 30? थर्ड मोमेंट जो 40 न्यूटन फोर्स की है, नहीं सर 20। देखें 20 न्यूटन फोर्स आपके पास जो अप्लाई हो रही है पॉइंट ओ से, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? इट इज दिस डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता क्या है? जो फोर्स और जिस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं उन दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आपका ये बनेगा ना, ये जो मैं ब्राउन से शो कर रहा हूँ, ओके सर, ठीक है सर, समझ गया। तो ये आपके पास 3 sin 30 बनता है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन जो कि कोई पूछना चाहे? सो आई होप कि स्केलर फॉर्मुलेशन और रिजल्टेंट मोमेंट हर एक को क्लियर है 2 डायमेंशन में। चलें मूविंग फॉरवर्ड, थोड़ा सा हम बात करते हैं अब वेक्टर फॉर्मुलेशन की। बट बिफोर मूविंग ऑन टू वेक्टर फॉर्मुलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आपको याद हो व्हेन वी वर डिस्कसिंग द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 2 व्हिच वाज डॉट प्रोडक्ट, उस वक्त हमने जस्ट एक ब्रीफ डिस्कशन किया था कि दो वेक्टर्स का जब भी आप प्रोडक्ट लेते हैं तो दो तरह के प्रोडक्ट्स उनमें पॉसिबल हैं। वन इज द डॉट प्रोडक्ट जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, द अदर वन इज द क्रॉस प्रोडक्ट जिसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज बाय टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वी आर गोइंग टू गेट अ स्केलर क्वांटिटी। However, once you are taking the cross product of two vectors, you are going to get another vector quantity. इसी वजह से क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कहा जाता है। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है? ऑल्दो आपने मैट्रिक एफएससी में किया होगा, हम थोड़ा सा क्विकली इसको रिव्यू कर लेते हैं। The cross product of two vectors a and b yields another vector c, which is written as vector c equal to vector a cross b, and that c equals a cross b. Now, since c is a vector quantity, so by the definition of a vector, it should have magnitude as well as direction. As far as the magnitude of this vector c is concerned, it is defined as the product of magnitudes of a and b vector as well as the sine of the angle theta between their tails. That is, the magnitude of c would be equal to ab sine of theta. Do you remember the magnitude of dot product? Dot product का magnitude क्या होता था जो chapter 2 में हमने पढ़ा था? Sir, A dot B cos theta. AB cos theta. However, the magnitude of the cross product is going to be AB sine of theta. तो जब आपसे कहा जाए कि दो वेक्टर्स आपस में उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, the magnitude of that cross product would be equal to the magnitude of A multiplied by magnitude of B and sine of the angle theta between their tails. So आपको यहाँ दिखाया भी गया है कि अगर आपके पास वेक्टर A है और वेक्टर बी, ये दो वेक्टर्स हैं, इनकी टेल्स के दरमियान एंगल थीटा बन रहा है। सो एज पर अवर डिस्कशन द मैग्नीट्यूड ऑफ सी वुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा विच इज द एंगल बिटवीन द टेल्स ऑफ दीज टू वेक्टर्स। क्लियर है यहाँ तक मैग्नीट्यूड का हर एक को? Okay, coming to the direction of this cross product. Now vector C has a direction that is perpendicular to the plane containing A and B such that C is specified by the right hand rule. जब हम direction की बात करते हैं तो this vector C would have a direction which is perpendicular to the plane containing those two vectors A and B, and its direction is going to be found using the same right hand rule जो कि हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किया है। वो राइट हैंड रूल क्या कहते हैं कि once you are curling your fingers in the direction from A towards B, यानी आप क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B ले रहे हैं ना, तो A से B के डायरेक्शन में जब आप कर्ल करेंगे तो आपका जो थंब है that is going to point out in the direction of this vector C. So vector C has a direction that is perpendicular to the plane containing A and B such that C is specified by the right hand rule, that is curling the fingers of this right hand from A to vector B, the thumb points out in the direction of C. So knowing both the magnitude and direction of C, now we can write this C vector as AB sin theta जो कि उसके magnitude को represent कर रहे हैं, and UC basically represents the direction of this C. अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास ये जो A और B वेक्टर हैं they are lying within the XY plane, so आपके पास ये XY plane है जिसमें ये दो वेक्टर्स लाई करते हैं, so what should be the direction of C now?
जी C कौन सी एक्सिस के अलोंग लाई करता है? Z Z एक्सिस के अलोंग। तो यूनिट वेक्टर UC के बजाय डायरेक्टली अगर Z एक्सिस आ रही है तो मैं उसको K के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट B क्रॉस A, ठीक है, तो B क्रॉस A को अगर आपने वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा? बी ए साइन थीटा, तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन क्या होगा बी क्रॉस ए का? एक्सिस के लॉन्ग So opposite direction क्या कहते हैं? C के opposite होगी इसकी direction. यानी आपके पास Negative UC बन जाएगा. नेगेटिव क्या आ जाएगा? इजंट इट? राइट हैंड रूल यूज करें ना, माइनस के जी बी से ए की तरफ फिंगर्स कर्ल करें तो द थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव z एक्सिस, सो आप यूनिट वेक्टर माइनस के के साथ इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। सो ओवरऑल b क्रॉस ए आपके पास माइनस बी ए साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताएं, क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं? फर्क कहाँ आ रहा है? एक नेगेटिव साइन का फर्क आ रहा है, इजंट इट? So does this cross product follows commutative law? No, sir. नो सर Because A cross B is not equal to B cross A. Rather, A cross B किसके बराबर है? Minus B cross C. माइनस बी क्रॉस ए। सो आपके पास जो कम्यूटेटिव लॉ है इट इज नॉट बीइंग फॉलोड बाय दिस क्रॉस प्रोडक्ट, बिकॉज अभी हमने देखा है ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। रादर आपके पास ए क्रॉस बी जो है वो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर आता है। अगर हम एसोसिएटिव लॉ की बात करें तो दिस क्रॉस प्रोडक्ट फॉलोज दिस एसोसिएटिव लॉ एज वेल एज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डॉट प्रोडक्ट हमारा तीनों लॉज को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हाउएवर जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारा कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को जो है वो फॉलो करता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। चलें, उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा कार्टेशियन वेक्टर फॉर्मुलेशन की। Now before moving on to the Cartesian vector formulation of this cross product, do you remember the Cartesian vector formulation of डॉट प्रोडक्ट? याद है कुछ? A डॉट B की कार्टेशियन नोटेशन क्या आती थी? कोई एक स्टूडेंट जो बता सके? AB cos theta. नहीं, ये तो उसका वो मेन मैग्नीट्यूड आता था। अगर कार्टेशियन नोटेशन की बात करें, इट वाज ax bx plus ay by plus az bz, रिमेंबर? Yes, sir. ठीक है, तो इसी तरह हम जरा अब क्रॉस प्रोडक्ट की थोड़ी सी कार्टेशियन नोटेशन की जो है वो बात करते हैं। सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी पेयर ऑफ कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स कैन बी डिटरमिन्ड बाय सिंपल, जिस तरह आपको यहाँ शो किया गया है। कैसे? इफ आई नीड टू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ से i क्रॉस i, सो दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, इनका मैग्नीट्यूड एज पर आवर डेफिनेशन 1 into 1 हो जाएगा। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन i एंड i? Sir, 0 degree. 0 डिग्री। सो साइन 0 कितना होता है? जीरो ही होता है सर। 0 होता है। इट मींस के जब हम i क्रॉस i या j क्रॉस j या k क्रॉस k यानी सिमिलर यूनिट वेक्टर्स की बात कर रहे होंगे तो देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी 0। ये पॉइंट क्लियर है एक को? इसके मुकाबले में अगर मैं कहूं i क्रॉस i के बजाय मैं i डॉट i कर रहा होता तो फिर क्या मिलना था मुझे? Sir, 1. वो 1 मिलना था। उसकी वजह क्या है कि डॉट प्रोडक्ट में हम cos यूज करते हैं। सो 1 into 1 cos 0 जब हम करते हैं तो हमारे पास 1 आ जाता है। सो i डॉट i 1 था, लेकिन i क्रॉस i आपके पास 0 आ जाता है। ओके, नाउ व्हेन यू आर टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ टू डिसिमिलर वेक्टर्स, सपोज मैं कहता हूं कि आपने i क्रॉस j करना है, सो इट इज गोइंग टू बी 1 into साइन ऑफ i और j के दरमियान एंगल कितना है? 90 डिग्रीज। जी तो जी आपके 90 पास सर। साइन 90 कितना होता है? 1, sir. 1 होता है। इट मींस के मैग्नीट्यूड तो इसका 1 आ गया। डायरेक्शन के लिए मैं राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करूं, मैं अपनी फिंगर्स को i से j की तरफ कर्ल करूंगा तो थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द z एक्सिस। सो मैं इसको लिख सकता हूं i क्रॉस j इज बेसिकली इक्वल टू k, इजंट इट? यस सर। सो आपने मैट्रिक एफएससी में ये जो छोटा सर्कल नीचे गिवन है उसके हवाले से पढ़ा हुआ है? Sir. मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिफाइन क्या कर रहे हैं सर्कल के? वंस यू आर टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी आप i क्रॉस j जब कर रहे हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यू आर गोइंग टू गेट द थर्ड यूनिट वेक्टर
with a positive thing. So I cross j is basically equal to k, j cross k is basically equal to I, k cross I is basically equal to j. Similarly, once you are moving along this circle in a clockwise direction, मतलब मैं आपसे कहता हूं कि आप I cross k कर रहे हैं, so आपको तीसरा वेक्टर मिलेगा with a negative quantity. So I cross k is minus j, k cross j is minus I, j cross I is minus k. तो जब आपको इन यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना हो, जो कि आपको लेना पड़ेगा व्हेन यू आर डीलिंग विद 3 डायमेंशंस, तो आप जो है वो इस स्मॉलर सर्कल का इस्तेमाल कर रहे होंगे, दैट इज I क्रॉस j k के बराबर आएगा, क्योंकि आप काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं. j क्रॉस k आपको I के बराबर मिलेगा एंड k क्रॉस I आपको j के बराबर मिलेगा. अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई दो यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब I क्रॉस k, वो आपको तीसरा वेक्टर मिलेगा विद अ नेगेटिव साइन. सो I क्रॉस k इज माइनस j, k क्रॉस j इज माइनस I, j क्रॉस I इज माइनस k. Is this point clear to all of you? Yes, sir. ठीक है, ऑल द मैट्रिक एफएससी में आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन जस्ट क्विकली हमने इसको रिव्यू कर लिया कि यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे लेते हैं. सो क्रॉसिंग दीज यूनिट वेक्टर्स इन अ काउंटर क्लॉकवाइज फैशन around the circle yields positive third unit vector. However, crossing these unit vectors in a clockwise fashion around this circle would yield a negative third unit vector. ठीक है. So now coming to the cross product of two general vectors a and b, I have written these vectors, both of them in terms of their Cartesian notation, axi plus ayj plus azk cross bxi plus byj plus bzk. अब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करेंगे कि एक एक टर्म को आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे. पहली टर्म को एक ही इसके साथ, उसी तरह फिर आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर आपने इसके साथ किया क्रॉस प्रोडक्ट, एक एक करके आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते चले जाएंगे. जिस तरह इससे पिछली साइड में बात हुई है, जहां जहां सिमिलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, दे आर गोइंग टू बी इक्वल टू 0. सो जहां जहां I क्रॉस I, j क्रॉस j या k क्रॉस k आ रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0. इसके मुकाबले में जहां डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स आ रहे हैं, उनको आप ये इस पर्टिकुलर तरीके से जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे होंगे. सो फाइनली the cross product would become this vector aybz minus azbyi, similarly something j or similarly something k. Now it is difficult to remember this particular notation. Rather, cross product को जब आप find कर रहे होते हैं, तो there is a much easier method of finding the cross product, that is by using this determinant. ये determinant वाला idea है हर एक को, मैट्रिक एफएससी में आपने पढ़ा हुआ है ये? Yes, sir. Yes, sir. इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि बजाय इसको कि इस चीज को मैं याद रखूं, मेरे लिए बेहतर क्या है कि जब जब मुझे दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना हो, तो मैं ये डिटर्मिनेंट वाला तरीका इस्तेमाल कर लूं. इट इज मच इजियर टू रिमेंबर. ये डिटर्मिनेंट वाला तरीका है क्या कि वंस यू आर टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन उसका क्रॉस प्रोडक्ट हम इस डिटर्मिनेंट की मदद से निकाल सकते हैं, जिसमें द फर्स्ट रो ऑफ दिस डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट्स द यूनिट वेक्टर्स I, j and k. The second row represents the components of the first vector, जो कि आपका यहाँ a है, उसका तीनों components ax, ay और az आ जाएंगे. The second row represents the components, the third row represents the components of vector b, जो second vector है आपका bx, by, bz. इसी तरह अगर आप b क्रॉस a ले रहे होते तो यहाँ आपके पास b आ जाता और यहाँ आपके पास a आ जाता. तो इस तरह आप डिटर्मिनेंट की मदद से ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ले सकते हैं. अब ये डिटर्मिनेंट की मदद से क्रॉस प्रोडक्ट लेते किस तरह है? जब आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, काइंडली मुझे बता सकते हैं, वंस यू आर एक्सपेंडिंग दिस डिटर्मिनेंट, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट. सपोज I से हम स्टार्ट करें, तो जब आप I से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने I वाली रो और कॉलम को, जी I वाली रो और कॉलम को जो है वो डिलीट कर दिया. थोड़ा सा गौर से देख लें, रिवीजन हो जाएगी आपकी. तो जब आप I के साथ लिख रहे हैं, आपने I वाली रो और कॉलम को डिलीट कर दिया. आप करते क्या है कि क्रॉस में aybz, तो आपके पास aybz आ जाएगा माइनस दिस थिंग विच इज azby. यहां तक समझ आ गया रेक को कि हमने I के साथ किया क्या है? Yes, sir. ओके. सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जब हमने j को करना है, तो j वाली रो को हम और कॉलम को जो है वो कट कर देते हैं. लेकिन j लिखते हुए सेकेंड टर्म है, तो हम माइनस का साइन ऐड करते हैं. सो माइनस j. अब उसी तरह ये टर्म्स माइनस दिस टर्म, सो ax bz माइनस az bx. इसी तरह जब हम थर्ड कर रहे हैं, तो आपने किया क्या, थर्ड में आपने k वाली रो और कॉलम को जो है एलिमिनेट कर दिया. इट वुड कम्स आउट टू बी प्लस k और मल्टीप्लाइंग दिस माइनस दिस, सो ax by
माइनस ए वाई बी एक्स। तो आपके पास यही टर्म आएगी जो कि इससे पहले हमने इंडिविजुअल यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेके की थी। सो सिंस दिस डिटरमिनेंट मेथड इज मच इजियर टू रिमेंबर, सो हम जनरली अपनी जिन प्रॉब्लम में 3D आ रहा होगा उसमें हम इस डिटरमिनेंट वाली फॉर्मुलेशन को जो है वो इस्तेमाल कर रहे होंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है। सो क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अब हम वेक्टर फॉर्मुलेशन के ऊपर जो है वो जाते हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग दिस क्रॉस प्रोडक्ट नोटेशन फॉर फाइंडिंग द वेक्टर फॉर्मुलेशन ऑफ मोमेंट। अच्छा, एक और बात, जब जब हमारे पास 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स आएंगे तो वी आर गोइंग टू यूज स्केलर फॉर्मुलेशन फॉर द सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, क्योंकि 2 डायमेंशन के प्रॉब्लम स्केलर तरीके से ज्यादा आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं। जब जब आपके पास मोमेंट्स के प्रॉब्लम 3 डायमेंशनल में आएंगे तो देन यू आर गोइंग टू यूज द वेक्टर फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्मुलेशन इस्तेमाल क्यों करते हैं कि जब 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। 2 डायमेंशन में तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना चूंकि आसान है तो आप जो है वो स्केलर फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन 3 डायमेंशन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना मुश्किल हो जाता है तो फिर आप वो स्केलर फॉर्मुलेशन के बजाय वेक्टर फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अभी हमने नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। Okay, so moving on to our next topic, which is moment of a force vector formulation. The moment of a force about point O, or actually about the moment axis passing through point O and perpendicular to the plane containing O and F, can be expressed using the cross product of two vectors R and F. So MO is being defined as R cross F, where R represents any position vector which is being defined from point O to the line of action of that force F. तो आप जो है वो ये वेक्टर फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करके, क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके मोमेंट को जो है वो डायरेक्टली कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। ये जस्ट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसका यहाँ बताया गया है, लेकिन उसको समझने के बजाय इसको अच्छी तरह समझें कि जब आप इस क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से मूवमेंट लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो क्वांटिटी मिलेगी दैट इज गोइंग टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल ये आर क्रॉस एफ वेक्टर क्या हो जाएगा अगर हम वो डिटरमिनेंट वाला मेथड फॉलो करें? फर्स्ट रो में क्या आना चाहिए? फर्स्ट रो में वो यूनिट वेक्टर्स आ जाएंगे आई, जे और के, इजंट इट? Yes, sir. व्हाट अबाउट द सेकंड रो ऑफ दिस डिटरमिनेंट? इसमें क्या आना चाहिए? Sir, R. आर के कंपोनेंट्स, तो इसको मैं आर एक्स, आर वाई और आर जी के तौर पे लिख दूंगा। व्हाट अबाउट द थर्ड रो? Sir, F components of F. The components of this force fx, fy, fz. तो अभी हमने जिस तरह बात की थी, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं ना तो जो पहला वेक्टर होता है जो कि यहाँ r है उसके कंपोनेंट्स आपको सेकंड रो में मिलते हैं इस डिटरमिनेंट की, और जो दूसरा वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स आपको थर्ड रो में मिलते हैं। पहली रो में i, j के यूनिट वेक्टर्स आते हैं। द सेकंड रो रिप्रेजेंट्स द x, y, z कंपोनेंट्स ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इन दिस क्रॉस प्रोडक्ट जो कि r है यहाँ। The third row represents the x, y, and z components of the second vector in this cross product जो कि f है। इसी तरह अगर आप f क्रॉस r कर रहे हैं तो f क्रॉस r में सेकंड रो में आपको f के कंपोनेंट्स मिलेंगे, थर्ड रो में आपको r के कंपोनेंट्स मिलेंगे। बट सिंस दिस cross product is not commutative, so whenever you are being asked to determine the moment vector, आपने इसको सही सीक्वेंस में क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, r क्रॉस f लेना है, बिकॉज r क्रॉस f इज नॉट इक्वल टू f क्रॉस r। अच्छा, अब जब आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, जिस तरह अभी हमने इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया था, यू आर गोइंग टू गेट ऑटोमेटिकली अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां से आपको जो डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके मिलेगा वो मोमेंट की कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन जो है वो मिल जाएगी। इन अदर वर्ड्स मोमेंट वेक्टर मिल जाएगा विद मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अच्छा, अब आपको मोमेंट की कार्टेशियन नोटेशन मिल गई। मैं आपसे कहूं कि इस मोमेंट का ओवरऑल मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो उसका क्या तरीका होगा? सपोज आपको वो कार्टेशियन नोटेशन मिली इस फॉर्म I की की एम magnitude एक्स का आई। square plus j का। जी बिल्कुल ठीक है, आपको मिल गई एम एक्स आई प्लस एम वाई जे प्लस एम जेड के। आप इसका एम एक्स स्क्वेयर प्लस एम वाई स्क्वेयर प्लस एम जेड स्क्वेयर होल अंडर रूट करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मोमेंट। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो जब जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से मोमेंट फाइंड करनी हो तो आप ये डिटरमिनेंट वाला मेथड इस्तेमाल करें, उससे ऑटोमेटिकली आपको मोमेंट वेक्टर कार्टेशियन नोटेशन की फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है? Yes, sir.
ओके, सो मोमेंट के वेक्टर की अभी हमने बात की थी, मैग्नीट्यूड उसका वही होगा जिस तरह से पहले हुआ था, r इंटू एफ साइन ऑफ थीटा, और डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपकी रोटेशन एक्स वाई प्लेन में हो रही है तो डेफिनेटली आपको r क्रॉस f से वो जो वेक्टर मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ k डायरेक्शन में मिलेगा। वो बेशक आप करके देख लें, प्रॉब्लम में आगे हम करके सॉल्व कर लेंगे। सो आई होप के द वेक्टर फॉर्मुलेशन ऑफ मोमेंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Whenever you are going to get a two-dimensional problem, आप स्केलर फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करेंगे। Whenever you are going to get a three-dimensional problem, तो उसमें चूंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना मुश्किल होता है, तो आप वेक्टर फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टली मोमेंट को कार्टेशियन नोटेशन में जो है वो निकाल रहे होंगे। आई होप दैट दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, the final slide for today's lecture is the principle of transmissibility. उसके बाद हम यहाँ स्टॉप हो जाएंगे। What does this principle of transmissibility says? Principle of transmissibility कहता है कि आप जब क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं मोमेंट फाइंड करने के लिए r क्रॉस f, तो उसमें r क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज दिस r? मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म, चलो 2D में हम कर रहे हो तो मोमेंट आर्म कहते हैं। जब हम 3D में कर रहे हो तो बेसिकली इट इज अ पोजीशन वेक्टर व्हिच इज बीइंग डिफाइंड टू बी स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट O जिसके अबाउट आप मोमेंट ले रहे हैं टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट फोर्स। ठीक है, R is basically a position vector which is being defined to be originating from point O and ending along the line of action of that force. अब थोड़ा सा गौर से इस फिगर को देखें। आपके पास ये फोर्स F है, इसकी मोमेंट आपने कैलकुलेट करनी है अबाउट पॉइंट O। सो आप कोई सा भी एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम O टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स। सो आप R1 क्रॉस F भी ले सकते हैं, आप चाहें तो R2 क्रॉस F ले लें, आप चाहें R3 क्रॉस F ले लें, R4 क्रॉस F ले लें, या आप चाहें तो R5 क्रॉस F ले सकते हैं। सो एनी वेक्टर कैन बी टेकन, एनी पोजीशन वेक्टर व्हिच इज बीइंग स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट O along the line of action of that force, उसको आप ये R की फॉर्म में ले सकते हैं। यू आर गोइंग टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ मोमेंट। सो R1 क्रॉस F शुड बी इक्वल टू R2 क्रॉस F should be equal to R3 cross F and so on. So force की line of action के along आप कोई भी एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम पॉइंट O, it will give you the same amount of moment MO. Now this particular property is termed as the principle of transmissibility of a force. ये principle of transmissibility क्या कहता है कि जरूरी नहीं है कि आप फोर्स का ही एंड पॉइंट या स्टार्ट पॉइंट लें, आप फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग कोई सा भी एक पॉइंट लेके पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं और R क्रॉस F की मदद से फिर आप ये फाइंड कर सकेंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि आगे आप प्रॉब्लम्स देखेंगे, आपके लिए हो सकते हैं कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना उस फोर्स के स्टार्ट या एंड पॉइंट में मुश्किल हो, लेकिन फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन आपको नोन हो, उस हवाले से कोई एक कन्वीनियंट पॉइंट आप लेके ये पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर दें और R क्रॉस F आप करके मोमेंट जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। इज दिस प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये हम अप्लाई भी करेंगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मुख्तलिफ पोजीशन वेक्टर्स को यूज करके हम देखेंगे कि मोमेंट्स हमें सेम मिल रहा होता है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी सर, जो एरो हेड होता है सर वो टुवर्ड्स द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा ना? जी, वो टुवर्ड्स द, यानी जो आप पोजीशन वेक्टर डिफाइन करेंगे दैट शुड बी डिफाइंड फ्रॉम द पॉइंट जिसके अबाउट आपने मोमेंट लेना है। हियर वो पॉइंट O आ जाता है, तो टेल उस पोजीशन वेक्टर की आपने O पे रखनी है, हेड जो है वो आप लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं भी जो है वो रख सकते हैं। ठीक है।